good morning to all of you. This is Mr. Shivam Dhiman, your English teacher, and today's video is for class 5th. Today's topic is helping verbs. As we know that helping verbs are also called auxiliaries or auxiliary form of verbs. Helping verbs are used with main verb in the sentence to form tenses, questions, negative statements. हेल्पिंग वर्ब्स को हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया वाक्य में काल या प्रश्न निर्माण करने में या नेगेटिव सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट्स है उनको नेगेटिव में, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। They are also used to seek permission, show ability, and ask to perform request or give an advice. Helping verbs का यूज हम परमिशन के लिए या किसी चीज को करने की क्षमता रखने के लिए या कोई एडवाइस देने के लिए या कोई रिक्वेस्ट करने के लिए भी शो करते हैं। First of all, we must understand the two types of auxiliaries or helping verb. There are two types of auxiliaries which are as follows. First one is primary auxiliaries and the other one is modal auxiliaries. Primary auxiliaries. Primary auxiliaries are the main form of helping verbs which can be used easily in the sentence. They are is, am, are, was verb, will, shall. They have be form of verb, be verb, do verb, have form of verbs. प्राइमरी ऑक्सिलरीज मेन वर्ब के फॉर्म में भी या हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी सेंटेंस में यूज हो सकती हैं। इफ वी टेक एग्जांपल, ही इज अ गुड बॉय। हियर वह एक अच्छा लड़का है, या राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। इज verb is used independently in the sentence, and if we use he is eating food, if we use he is eating food, is the example of primary auxiliary. They did not study in the home. वे घर में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर is did क्या बता रहे हैं? as a tense of the sentence. You have a watch. तुम्हारे पास एक घड़ी है। यहाँ पर हमने have के साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं लगाई है। हमने have के साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं लगाई है। Have independently as a helping verb sentence में use हुआ है। You have a verb. You have a watch. So these are primary auxiliaries with be form of verb, did form of verb, or do form of verb, or have form of verb. There are three verbs in the primary auxiliaries which are be form of verb, do form of verb, and the third is have form of verb. Now coming to the modal auxiliaries. Modal auxiliaries are used with the main verb to show the mode of happening of an action. मोडल एक्सिलरीज जो हैं वो वर्ब में मेन वर्ब के साथ यूज अप होके हमारे एक्शन का किस तरह से हो रहा है वो बताते हैं। सपोज वी यूज सेंटेंस शी कैन डू दिस वर्क। वह ये काम कर सकती है। तो यहाँ पर वह ये काम कर सकती है यानी कि वो उस काम को करने की क्षमता रखती है। मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर। हियर मे इज यूज्ड टू शो that someone is asking permission to let him in by his teacher. So modal auxiliaries are used to show some action which has a mode of happening, in which way they are happening in the sentence, like to make a request, to ask permission, to do a duty, or to show ability, or can be making a request in the sentence. So
These are our two auxiliaries which are as follows: primary auxiliaries and modal auxiliaries. Now we will understand how to frame the sentence in three forms. As we know that the sentence is simply written in the positive statement like she is eating food, वह खाना खा रही है. अगर हम इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? वह खाना नहीं खा रही, दैट इज शी इज नॉट ईटिंग फूड. जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ तो वो क्या बन जाता है? नेगेटिव स्टेटमेंट. जैसे ही डू नॉट लिव इन यूएसए, he lives in USA, he do not lives in, he does not lives in USA, he lives in USA, he does not live in USA. ओके ओके. अब हम अगर देखें तो क्वेश्चन टैग्स, तो क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं? तो क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेल्पिंग वर्ब को आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देना है. जैसे अगर लिखा है he is writing a letter, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? is को आपको कहाँ लगा देना है? स्टार्टिंग में. ठीक, आपने इसको प्लेस कर दिया स्टार्टिंग में तो क्या बन गया? is he writing a letter, he is writing a letter, he is not writing a letter नेगेटिव में चला गया. और is अगर हमने पहले लगा दिया स्टार्टिंग में तो क्या बन गया? is he writing a letter, is he writing a letter. एंड क्वेश्चन मार्क नेसेसरी है. अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो आपका क्वेश्चन सेंटेंसेस नहीं बन पाए, क्वेश्चन स्टेटमेंट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं बन पाए. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्टिंग में इंक्लूड कर देना है किसी भी सेंटेंस के. जैसे अगर लिखा है he has written a letter, has he written a letter, has he written a letter and question. Now converting the an interrogative sentence in a unique way. अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक नए तरीके से बदलना सीखते हैं. जैसे क्वेश्चन टैग्स जैसे कि आपने मोडेल्स का यूज किया है. जैसे कांट शी, विल यू, तो जो मोडाल है वो नॉट भी यूज कर सकता है और नॉट के बिना भी लिखा जा सकता है विद प्रोनाउन. जैसे कांट शी, कांट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट. कैन नॉट को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो क्या बन जाएगा? कांट. विल नॉट, वांट. शुड नॉट, शुडंट. कांट शी, विल यू. Okay, these are question tags. First of all, first sentence, look at the blackboard. Here, first sentence is snow is white, isn't it? बर्फ सफेद है ना? Snow is white, बर्फ सफेद है. क्या वह सफेद है? तो इसलिए हमने snow is white, isn't it? तो स्नो क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, एक आपकी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये यूज की गई है. तो स्नो और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या लगाते हैं? इट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. तो स्नो इज वाइट, इजंट इट, तो हमने स्नो की जगह क्या लगा दिया? इट. एंड इज आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमने उसको नेगेटिव क्वेश्चन टैग में चेंज कर दिया. तो देखिए स्नो इज वाइट, इजंट इट, तो स्नो इज को आपको लेना है. आपको वाइट को नहीं लेना है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है या आपको मोडाल हेल्पिंग वर्ब देखनी है. तो आपने हेल्पिंग वर्ब ले ली और आपने सब्जेक्ट ले लिया, तो आपने दोनों को इंक्लूड किया. अब आपको क्वेश्चन टैग में सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब. अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव में चेंज करना है. जैसे यहाँ पर इसका क्या होगा? इज नॉट, तो इजंट. शॉर्ट फॉर्म इज नॉट का क्या हो गया? इजंट. और स्नो एक नॉन लिविंग थिंग है तो क्या हो गया उसका? इट. इजंट इट. ठीक है, स्नो इज वाइट, इजंट इट. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग से यूज करते हैं. यू कांट सी मी, यू कांट सी मी, तुम मुझे नहीं देख सकते हो. क्या तुम देख सकते हो? तो यू कांट सी मी, कांट यू. तो यहाँ पर देखिए, सॉरी एक बट वेट अ मिनट, यू कांट सी मी, कैन यू. तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है यू कांट सी मी, कैन यू. तो अब हम सेंटेंस अगर पढ़ते हैं कि यू कांट सी मी, कैन यू, तो यहाँ पर कैन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? नेगेटिव स्टेटमेंट वाली. नेगेटिव स्टेटमेंट है ये और हमने
जो पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन टैग यूज किया है। कौन सा क्वेश्चन टैग यूज किया है? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है, यू कांट सी मी, कांट इज अ नेगेटिव वर्ड, तो यू कांट ले लिया हमने। अब कांट को हम चेंज कर देंगे, ठीक, उसमें से नॉट हटा दिया, लिख दिया कैन नॉट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कांट, है ना। कांट जो है वो हमने शॉर्ट कर दिया है, कैन नॉट को नहीं लिखा है, हमने क्या लिख दिया है? कांट। ठीक है, तो कांट की जगह हमने लिख दिया नॉट हटा के कैन, और यू का एज इट इज यू ही रहेगा, तो कैन यू। तो जब भी ये चीज याद रखेगा कि जब भी हम पॉजिटिव स्टेटमेंट लेंगे तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, और जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट लेंगे तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट positive question tag. Okay, so this was the explanation of today's helping verb topic. I hope you must have understood about the chapter. If anyone has any problem with this, or if there is any difficulty to understand this, you can ask me through the interaction of online class. And have a nice day. Thank you for watching this video.